Let us start with. My voice is clear and audible. Yes, sir. Yes, sir. Okay, just to recall back, last time we have seen where we are expecting the signals in infrared spectrum looking into different bonds present in an organic compound. And we have seen that 1500 to 2000 region, centimeter inverse region, is attributed to double bond stretching, whereas above 2000 you can get your triple bond stretching, and above 2800 you are going to get your this three specific single bond stretching, CH, OH and NH. CS stretching is very characteristic in organic compounds. Saturated CS stretching we get just below 3000, while unsaturated CS stretching we get above 3000, and highest uh, value is observed for triple bond CH. That stretching usually happens around 3300, whereas double bond CH stretching is around 3100. Baki OH and NH, we are going to look to these stretching frequencies today. Otherwise, I have already told you how to distinguish between alkene and alkyne. Alkane, alkene and alkyne. And I have also told you that how to distinguish between a terminal alkyne from other alkynes, because terminal alkynes have triple bond CH stretching which is not present in any other alkyne. So rest of the things let me discuss today quickly. So next important stretching frequency is OH. Okay, so OH stretching, if you look at OH stretching, uh, this is one of the very important stretching frequency observed in infrared, and you can never miss this OH stretching band or signal in infrared spectroscopy. Why? Because uh, the characteristic of this stretching frequency is this is a very broad peak, and broadness is attributed to hydrogen bonding. Okay, so hydrogen bonding is one of the most important feature of this OH. आपको पता है कि alcohol, these OH bonds are highly polar, therefore there is a possibility of hydrogen bonding between the alcohol molecules.
and you can sew. You know how to sew the hydrogen bonding. Yes. सर आपने ये ब्रॉड पीक एंड उसके बाद क्या लिखा है सर? Broad peak and broadness is ओके attributed to hydrogen bonding. ओके सर. That means stronger is the hydrogen bonding, more broad is the peak. आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग जितना स्ट्रांग होगा, आपका ब्रॉडनेस उतना ज्यादा होगा. तो this is one of the characteristic. Another characteristic of this OH peak is rounded tip. नॉर्मली मैं आपको पहले भी बोला हूं कि जो आईआर पिक्स, आईआर सिग्नल होता है, आप देखोगे वो जो पिक है शार्प पिक होता है. यूवी विजिबल में राउंडेड पिक आपको मिलता है, बट आईआर में नॉर्मली शार्प पिक्स मिलता है. बट हियर इन द ओएच you will get a rounded tip. So this is another characteristic of OH peak, okay, which makes it distinguishable from other stretching bands. So broad and rounded tip are the two characteristics of OH. बाकी जो है वो 3400 के आसपास आता है, 3300 400 इसी रेंज में आता है. तो रेंज में अगर आप देखोगे तो दिस इज ऑब्जर्व इन द सेम रेंज वेयर NH एंड CH पीक्स आर आल्सो ऑब्जर्व. तो NH CH के साथ ही ये OH पीक्स होता है, बट NH एंड CH से इसको डिस्टिंक्शन करना बहुत इजी है because of the nature of the peak which is rounded tip, and this is the only peak in IR which is rounded, having rounded tip. Okay, so broad and rounded tip makes it quite clearly distinguishable from other peaks of the infrared spectrum. So these are the two things you should mark. And कोई भी alcohol में you can get this one. Also acids are another class of compounds where you may get this OH stretching. तो OH कहाँ पे मिलता है? नॉर्मली आपका अल्कोहल्स में. सपोज आपका एक अल्कोहल है CH3 CH2 CH2 OH. तो इसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक पिक्स क्या क्या मिलेगा? एक तो आपको सैचुरेटेड CH स्ट्रेचिंग मिलेगा जस्ट बिलो 3000 centimeter inverse, 2 peaks, and in addition to that OH stretching जो कि अराउंड 3400 सेंटीमीटर इनवर्स मिलेगा, ब्रॉड एंड राउंडेड टिप. तो कोई भी अल्कोहल में ये आपका कैरेक्टरिस्टिक होता है. जो अगर अनसैचुरेशन होगा तो अनसैचुरेशन के लिए आपको कुछ पिक्स मिलेगा, बट सैचुरेटेड अल्कोहल में डेफिनेटली you are going to get these two important peaks. One is because of this saturated CH stretching and another is OH stretching. तो हमने भी देखा था लास्ट टाइम, मैं आपको अल्कोहल का दो स्पेक्ट्रम दिखाया था टू टू हैव एन आइडिया ऑन द फिंगरप्रिंट रीजन. मैं आपको बोला था कि फिंगरप्रिंट रीजन के बारे में जब बोल रहा था, 2 प्रोपेनॉल या 2 ब्यूटेनॉल एंड 1 ब्यूटेनॉल आई थिंक आई वाज डिस्कसिंग. एंड कोई भी अल्कोहल में आपको उसी पिक्स को देखना पड़ेगा. यू कैन सी दिस वन, दिस इज 2 प्रोपेनॉल and you can see this is the OH peak, and I've already told you broad peak, rounded tip. Okay, these are the characteristics. and ये जो रीजन में आपको मिलता है वो भी एक इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि 3000 से ऊपर आपको बहुत कम पिक्स मिलता है. so it is very very clearly visible in IR spectrum. okay, and ये जो 3000 से जस्ट नीचे जो पिक्स है, these peaks are actually attributed to this saturated CH stretching. So these peaks are attributed to saturated CH stretching, and this one is attributed to OH. And this is available in both 2 propanol as well as in 1 propanol. Okay. And in the towards also पीछे भी आपको और भी कुछ
अल्कोहल का पीक्स आपको मिलेगा. दिस इज अनदर वन, दैट इज 1-butanol, बट सेम पैटर्न वी आर गोइंग टू गेट. आप गूगल में जाके सर्च करके भी देख सकते हो, कोई भी अल्कोहल में आपको ये जो पीक है ये कैरेक्टरिस्टिक पीक है. मैं आपको बोला था हाउ टू चेक योर प्रेडिक्शंस. आप एक मॉलिक्यूल में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक पिक्स हो सकता है, आप प्रेडिक्शन करने के बाद आप जाके गूगल में देख भी सकते हो. दैट इज IR स्पेक्ट्रम ऑफ अल्कोहल. As an example, you can take any alcohol. What are the characteristic peaks? आप देख भी सकते हो, कहीं भी कोई भी अल्कोहल में आप देख सकते हो. इथेनॉल is simple alcohol and you can look at the peaks. Now, do you understand what I'm saying? Yes. Yes, sir. तो आपको ब्रॉड राउंडेड पीक जो 3500, 400, 3400, 3300 के रेंज में मिलेगा. एंड बाकी जो सैचुरेटेड सीएस स्ट्रेचिंग है वो तो मिलेगा ही. और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है बट वो बेंडिंग रीजन में है, देयरफॉर आई एम नॉट इंटरेस्टेड. सीओ स्ट्रेच है, सीओ स्ट्रेच इज ऑब्जर्व्ड एट अराउंड 1100. तो 1500 से नीचे में आपको बोला हूं कि यू शुड नॉट लुक इनटू दोज थिंग्स. एज ए बिगिनर यू मे मिस द बेंडिंग रीजन पीक्स, so you focus on the principal peaks which are observed above 1500. So that is the thing in alcohol. But somebody goes to unsaturated alcohol, suppose आपका उस unsaturated alcohol में आप जाओगे, डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, तो डेफिनेटली C का पीक आपको मिलेगा. C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगा. विनाइल अल्कोहल का बात करते हैं, सपोज CH2 डबल बॉन्ड CH OH. कैनॉट यू टेल मी व्हाट आर द पीक्स? यहाँ पे आप देख के बोल सकते हो क्या क्या पीक आपका आएगा? यस. इंटरेस्टिंगली सर एक OH, एक C डबल बॉन्ड C, एक आपका OH स्ट्रेचिंग जो कि अराउंड 3300, 3400 ब्रॉड एंड राउंडेड. बाकी आपका C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग जो कि 1640 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास है, 1500 से 2000 के बीच में. बट यहाँ पे थोड़ा आपका डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो ये थोड़ा लोअर साइड में आपका जाएगा. ओके. और डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग ये आपका 3100 के आसपास आएगा, ऊपर आएगा ना 3000 से ऊपर. बट यहाँ पे आप देखो कोई सैचुरेटेड C स्ट्रेचिंग नहीं है, इज नॉट इट? देयर इज नो सैचुरेटेड C स्ट्रेचिंग. सही बोल रहा हूँ? यस सर. तो यहाँ पे थोड़ा और बड़ा मॉलिक्यूल होता, मीन्स यहाँ पे एक CH3 ग्रुप होता, तो यू मस्ट हैव गॉट आल्सो सैचुरेटेड C स्ट्रेचिंग जस्ट बिलो 3000. ये पीक्स आपको मिलता. तो I think you can find out what are the characteristic bands you are expecting in a particular molecule. And I have given you a lot of questions also. 30 questions around I have given you. Have you seen that PDF में मैं दिया था? आपने मिला तो आपको वो जो B1 ग्रुप में मैं शेयर किया था, वो जस्ट आप उसको एक बार देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन कोई पूछ सकता है. ओके. एंड जितना मैं बोला हूं आपको उतने में से ऑल दी 30 क्वेश्चंस आपका हो जाएगा. ओके. सो एनीवे, तो अल्कोहल का जो पिकुलरिटी मैं आपको बता दिया. हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रॉडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आप सोच के रखो. ओके. कमिंग टू द NH पीक्स. NH में हम लोग अल्कोहल के साथ साथ NH का बात करते हैं. इसका रीजन ओनली ये है कि NH का पीक भी वही 3300, 3400
इसी रेंज में आता है। NH में भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पे होता है तो आपको पता है, HF, OH एंड NH, ये तीनों जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। बट NH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डेफिनेटली less pronounced or more weak than OH hydrogen bond, is not it? Yes, hydrogen bonding is less effective than OH, because oxygen is more electronegative. OH bond and NH bond का अगर polarity आप compare करोगे, OH bond is more polar than NH. Therefore यहाँ पे hydrogen bonding इतना ज्यादा effective नहीं है. Therefore broadness is relatively less. तो NH में OH जैसा इतना ब्रॉड पीक आपको नहीं मिलेगा। दूसरा चीज ये है कि शार्प पीक, आपको पीक यहाँ पे शार्प मिलेगा। यू आर नॉट गोइंग टू गेट दैट राउंडेड टिप वाला पीक। तो डिस्टिंक्शन बिकम्स मच मोर इजियर। दो both the peaks are observed in the same region, OH peak is rounded and broad, relatively broad, whereas NH peak is relatively less broad and sharp. Okay. अच्छा, another thing, amines में अगर amine का बात करें, you can see, you can get 3 different types of amines. Am I correct? What are these amines known as? इनको क्या बोलते हैं? प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। यस। तो can these NH peaks utilized for distinction? You see here NH stretching is absent. Am I correct? Yes, sir. टर्शियरी अमीन में कोई NH बॉन्ड तो है नहीं। Are you getting my point? Here you are going only one NH bond, whereas here we are getting 2 NH bonds. तो आप देखोगे अगर NH स्ट्रेचिंग बैंड को थोड़ा क्लोज लुक दोगे तो यहाँ पे आपको 2 सिग्नल्स या 2 पीक्स, क्लोज पीक्स मिलेगा। एंड these 2 close peaks are actually attributed to symmetrical and non-symmetrical stretching. ये symmetrical stretching है या non-symmetrical stretching, अगर आपको भी पता है कैसे होता है। एक बाहर की तरफ जाएगा, एक अंदर की तरफ जाएगा। तो माय पॉइंट इज दैट यहाँ पे आपको 2 सिग्नल मिलेगा आसपास, वेरी क्लोज, व्हेयरएज यहाँ पे आपको एक सिंगल सिग्नल आपको मिलेगा फॉर NH स्ट्रेचिंग, एंड यहाँ पे आपको नो सिग्नल फॉर NH स्ट्रेचिंग। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन डिस्टिंक्शन करना बहुत इजी है, क्योंकि टर्शियरी में आपका NH सिग्नल बिल्कुल नहीं मिलेगा। मीन्स जो 3300 400 के आसपास आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। व्हेयरएज सेकेंडरी में आपको एक सिग्नल मिलेगा, एंड आपका जो प्राइमरी है वहां पे 2 सिग्नल मिलेगा। सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग बहुत आसपास होगा, क्लोज सिग्नल मिलेगा। ओके, सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। तो अब जब देखोगे रियल स्पेक्ट्रम, आपको ये क्लियरली यू कैन विजुअलाइज। मैं आपको यहाँ पे अमीन्स का लेता हूं, स्लाइड में भी है, डोंट वरी, लुक एट दैट। दिस इज I don't know whether all peaks will be available. This is you can see, मैं जो चीज बोला यहीं पे लिखा गया है।
जितना भी चीज मैं आपसे साथ डिस्कशन किया, सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, asymmetrical stretching, everything has been discussed here, and you can see this one. अब देखो, ये एक एनिलीन का स्पेक्ट्रम है, एंड एनिलीन मोस्टली दैट इज ए प्राइमरी अमीन, इज नॉट इट? यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अल्किल ग्रुप देयर इज ए फिनाइल ग्रुप. Am I clear? अरे एनिलीन एंड नॉर्मल अल्काइन जो अलिफेटिक अल्काइन से फर्क क्या है? यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, फिनाइल ग्रुप है. अदरवाइज अमीन होता तो आर्क होता. तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत यहाँ पे अलग सा एनवायरमेंट है, बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर यहाँ पे होगा दैट इज इन कॉन्जुगेशन विथ डबल बॉन्ड. तो कॉन्जुगेशन इफेक्ट थोड़ा होगा, शिफ्टिंग होगा, बट जो बेसिक चीज है, ये NH2 ग्रुप का जो पीक अगर आप देखोगे तो ये जो पीक्स है आपको 3000 से ऊपर 3300-400 रीजन में दो पीक्स मिलेगा, क्योंकि ये एक प्राइमरी अमीन ग्रुप है, दो इट इज अटैच्ड टू एरोमेटिक सिस्टम. और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपको टू पीक्स ऊपर मिलेगा 3300-400 के आसपास. तो आप देख सकते हो एक 3442 यहाँ पे है, 3442, अनदर इज 3360. So these two peaks are actually attributed to that NH stretching. Do you understand? शोल्डर के बारे में भूल जाओ, क्योंकि ये सब चीज दूसरा इंफॉर्मेशन है, ये मैं आपको नहीं बताया. तो definitely many things will be there in the infrared spectrum which we are missing now. As a beginner, you should not be worried about that. The characteristic peaks are these two peaks, two NH peaks, which are because of the primary amine. Okay. बाकी यहाँ पे आपका C11C का स्ट्रेचिंग आपको मिलेगा, थोड़ा लोअर साइड में मिलेगा, क्योंकि एरोमेटिक सिस्टम में कोई भी डबल बॉन्ड लोकलाइज डबल बॉन्ड नहीं है, ये पूरा डीलोकलाइज सिस्टम है. तो C11C you cannot just expect at 1642, that will definitely go to the lower side. तो anyway, तो वो सब चीज छोड़ देते हैं, हम एक सेकेंडरी अमीन का बात करते हैं. NH, this side there is alkyl group, this side there is alkyl group. Can you see the cursor? cursor दिख रहा है ना मेरा? Yes, sir. So diethyl amine का आप देख सकते हो, this is a secondary amine, so you are not going to get two signals here, you are going to get only one signal. You can see, okay, that is secondary amine stretch, NH stretching. And you can see this is a tertiary amine, and interestingly there is no peak here. Around 3300 400 आपको कोई भी पीक यहाँ पे नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज ए टॉर्शियरी अमीन, देयर इज नो NH स्ट्रेचिंग. तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस NH systems or amines, and that is what I was saying. And if you look at the slides also, I have mentioned what are the characteristics of OH and NH stretching. Just read out कर देते हैं. Both these peaks occur around 3300, but they look different. Alcohol peak is broad and rounded tip. बाकी जो 3 पॉइंट है वो अमीन्स के लिए है. सो सेकेंडरी अमीन में एक ही पीक आपको मिलेगा, whereas प्राइमरी अमीन में दो पीक्स आपको मिलेगा, एंड देयर इज नो सिग्नल फॉर टर्शियरी अमीन. And the same thing is reflected in alcohol, and these are the amine peaks. This is for a primary amine. This is for a secondary amine. There is no peak for tertiary amine, but I have not shown it. So that is your OH and NH. Coming to the next important peak in IR, that is carbonyl compounds. So what about OH and NH in the same compound if an amine contains an alcohol too? अगर OH and NH होगा, definitely you are going to get broad OH peak, and often OH peak there is a possibility that it may obscure the NH peak. NH peak को shadow कर सकता है. Okay, sir.
ओके, क्योंकि OH का जो पीक होता है वो बहुत ब्रॉड होता है एंड इतना सिग्निफिकेंट पीक होता है कि इसको तो आप मिस कभी नहीं करोगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? NH पीक अगर अलग अलग होगा तो आराम से आप डिस्टिंक्शन कर सकते हो बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस है अपीयरेंस में, बट अगर दोनों साथ साथ होगा तो डेफिनेटली देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरफेरेंस एंड ऑब्स्करिंग। ऑब्स्करिंग हो सकता है तो दूसरा कोई IR को छोड़ के कोई दूसरा स्पेक्ट्रम आपको वहां पे हेल्प कर सकता है टू डिस्टिंग्विश। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कुछ जगह पे हो सकता है कि IR आपको क्लियर कट इंफॉर्मेशन ना दे, बट यू कैन यूटिलाइज अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स टू अराइव एट ए कंक्लूजन। ओके, सो दोनों एक साथ होगा तो हो सकता है कि बिकॉज ऑफ ओवरलैपिंग और इंटरफेरेंस यू मे मिस द NH peak, बट नेवर यू कैन मिस दैट OH peak। OH peak आपका कभी मिस नहीं होगा। Coming to carbonyl stretching, that is another important carbonyl stretching। ये another important stretching है in infrared, and when I'm saying carbonyl I'm talking of this C double bond O systems। Carbonyl stretching is around 17-20 सेंटीमीटर इनवर्स में होता है। ये नॉर्मल CO स्ट्रेचिंग का बात कर रहा हूं विदाउट एनी इफेक्ट। आप देखोगे सपोज एल्डिहाइड एंड कीटोन आपके पास है, एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है, तो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, कहां पे हायर साइड में होगा कहां पे लोअर साइड में होगा? कैन यू टेल मी? जस्ट मैंने एक आइडिया, एल्डिहाइड एंड कीटोन में जितना आपने पढ़ा आपका +2 में, कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग? कीटोन में ये थोड़ा आपका लोअर साइड में जाएगा या हायर साइड में आएगा? कीटोन एंड एल्डिहाइड में फर्क क्या है? सपोज यू आर टेकिंग समथिंग लाइक ए फॉर्मल्डिहाइड HCOH, you are taking some another aldehyde and you are taking a ketone. What you are expecting? Means what should be the trend you are expecting? सर एंड अच्छा हाँ बोलो बोलो। सर कीटोन पे एक्स्ट्रा CC बॉन्ड होता है हाँ क्योंकि एक्स्ट्रा ये जो इंडक्टिव इफेक्ट का काम है थोड़ा बहुत। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है? ये जो पोलरिटी है C प्लस एंड O डेल्टा माइनस, ये तो पोलर बॉन्ड है ना। ये पोलरिटी को ये क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। इंडक्टिव इफेक्ट, इज नॉट इट? अरे इंडक्टिव इफेक्ट पोलरिटी को क्या करता है? रिड्यूस करता है कि नहीं? तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा ना, कम हो जाता है एक्चुअली। मोर इज द पोलरिटी स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। एंड आप देखोगे ये नॉर्मली 1740 1750 के आसपास होता है, whereas एसिटल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड ये थोड़ा और लोअर साइड में 740 के आसपास होता है, whereas एक कीटोन में आते आते ये 1720 के आसपास आ जाता है। तो माय पॉइंट इज दैट एल्डिहाइड नॉर्मली थोड़ा हायर साइड में होता है देन कीटोन, and this inductive effect of alkyl group, inductive effect of alkyl group decreases the polarity, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ना। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मीन्स ये जो पोलरिटी ऑफ कार्बन है ये तो प्लस है ना, ये थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मीन्स पोलरिटी कम हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? यस यस सर। यस सर। तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। अगर कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आप लगा दोगे सपोज,
डेफिनेटली ये पोलरिटी को बढ़ा देगा। Are you getting my point? सपोज ना, आप समझे नहीं मैं जो बोल रहा हूँ। सपोज क्लोरीन एक लगा दूंगा यहाँ पे, एसिड क्लोराइड RCOCl, क्लोरीन एक विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये पोलरिटी को बढ़ा देगा यहाँ पे। तो एसिड क्लोराइड में ये थोड़ा और हायर साइड में जाएगा। मीन्स जितना बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना आपका ज्यादा एनर्जी उसको चाहिए फॉर स्ट्रेचिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और एक क्वेश्चन देने से आप देखोगे, मैं एक आपको क्वेश्चन देता हूं किस तरह से हो सकता है। ये एक कंपैरिजन वाला था। दूसरा एक, सपोज यू आर हैविंग CH3COH एसिटाल्डिहाइड, CH2 डबल बॉन्ड CH COH, another is CH2 डबल बॉन्ड C CH3 COH। मैं थोड़ा स्ट्रक्चर को दिखा दिया हूँ अच्छी तरह से। कैन यू अरेंज? ये तो मैं बोल दिया आपको अराउंड 740 1745 इसी के आसपास आएगा। What about this? I'm talking of only carbonyl stretching. I'm not talking of this C double bond C stretching. मैं carbonyl stretching का बात कर रहा हूँ। What will happen to this? It will go to the higher side or lower side? So lower side 1740. Exactly, ये lower side में होगा क्योंकि resonance है। Resonance means this double bond now becomes have single bond character. This bond double bond is weakened actually. Bond order decreases. तो ये 17 20 25 इसी के आसपास होगा। वैल्यूज में छोड़ दीजिए। यू शुड बी एबल टू अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉम्बाइंड इफेक्ट है। ये तो है, इसके साथ साथ ये रिलीजिंग इफेक्ट भी है, पोलरिटी को कम करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज एन एडिशनल इफेक्ट और नॉट? दिस इंडक्टिव इफेक्ट इज इन एडिशन टू दिस रेजोनेंस इफेक्ट। तो दोनों रेनफोर्स कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में काम कर रहा है। तो ये क्या होगा? इन बिटवीन होगा, ये और नीचे जाएगा। यस सर और नीचे जा सकता है क्योंकि पोलैरिटी कम होती है। यस यस यस, ये मैं डाटा बुक से देख के लिख रहा हूँ, डोंट वरी, आई हैव नॉट रिमेम्बर्ड, बट इट विल गो डाउन अनदर 20-23 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे चला गया है। तो इस तरह से आपको कंपैरिजन या अरेंज करने वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। एंड यू हैव टू यूटिलाइज योर कॉमन सेंस। एकदम कॉमन सेंस है कि बॉन्ड आपका वीक हो रहा है। एक्चुअली आपका जो फॉर्मूला है, आप इसको थोड़ा माइंड में एवरी टाइम रखिए कि न्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई सी के बाई म्यू रूट ओवर। तो यहाँ पे तो पाई सी म्यू का बात छोड़ दीजिए, फोर्स कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, रिड्यूस्ड मास तो कार्बोनिल ग्रुप के लिए ऑल दिस 3 कंपाउंड्स में रिड्यूस्ड मास तो सेम ही होगा, इज नॉट इट? तो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन में अगर सेम बॉन्ड है तो रिड्यूस्ड मास के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो ओनली थिंग इज दैट फोर्स कांस्टेंट। दिस फोर्स कांस्टेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होगा मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, so stretching frequency will be higher. Do you understand? यस सर। एक्सक्यूज मी सर आपने पोलैरिटी को लेकर बताया था, तो एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? पोलैरिटी अगर ज्यादा होता है तो वो बढ़ेगा स्ट्रेचिंग या कम होगा? पोलरिटी कोवैलेंट बॉन्ड में आप देखो, कोवैलेंट बॉन्ड में पोलरिटी जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। आयोनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड का बात कर रहे हैं आप। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पोलरिटी जितना ज्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना आपका ज्यादा होगा। तो ये जो अल्किल ग्रुप्स है वो क्या कर रहा है ना, पोलरिटी को कम कर रहा है, क्योंकि दे आर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन टू द कार्बन। कार्बन आपका पॉजिटिव सेंटर है ना, CO बॉन्ड में कार्बन आपका पॉजिटिव सेंटर है, ऑक्सीजन आपका नेगेटिव सेंटर है ना।
डेल्टा Yes, sir. प्लस एंड डेल्टा माइनस। अब देखो, तो अगर आप कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ाओगे, मींस बाय सम मैकेनिज्म इफ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टुवर्ड्स कार्बन, डेफिनेटली कार्बन का ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. That is what I'm saying. So polarity will be reduced actually. And when the impact of two alkyl groups are there, यहाँ पे impact of two alkyl groups, this is only one alkyl group. And ये चीज आपने प्लस टू में भी पढ़ा होगा आपका, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जब होता है कार्बोनिल कंपाउंड्स में, सबसे कॉमन रिएक्शन कौन सा है? देयर इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आप देखे होंगे कि मोस्टली एल्डिहाइड्स में बहुत फास्ट होता है एंड इफेक्टिव होता है देन कीटोन्स। वहां पे दो रीजन आपने साइट किया होगा, एक तो है पोलरिटी, कार्बन का ऊपर पोलरिटी कम हो जाता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्किल ग्रुप्स, एंड दूसरा है स्टेरिक फैक्टर। यहाँ पे एक स्टेरिक फैक्टर भी काम करता है बिकॉज दिस कार्बन शुड बी ओपन फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे अल्किल ग्रुप तो लार्ज ग्रुप होता है, तो somehow they provide also the steric hindrance, क्योंकि ये तीनों जो एटम्स है एक ही प्लेन में होता है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सो एक प्लेन मींस steric factor plays a very very important role also, because all the groups remain in one plane. When they go to different planes, there is a possibility of reduced steric impact. एक प्लेन में steric impact ज्यादा होता है, तो इसलिए आप देखे होंगे कि एल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में सबसे रिएक्टिव होता है, फॉर्मल्डिहाइड सबसे रिएक्टिव होता है, देन एनी अदर एल्डिहाइड, एंड देन लीस्ट रिएक्टिव इज कीटोन। याद आ रहा है? यस? Yes, sir. ना पूरा भूल गए। एनीवे, देयर इज अ गैप, अपने भूल गए अभी, नेचुरली होता है ये इफ यू आर नॉट इन ए टच, बट बोलने से तो याद आना चाहिए। कार्बोनिल ग्रुप में नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, सी डबल बॉन्ड सी में नॉर्मली जो यहाँ पे पोलरिटी बेसिकली नहीं होता है, वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। सी डबल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे पोलरिटी नहीं होता है, इनहेरिटेंट पोलरिटी नहीं होता है, इसलिए वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। एंड कार्बोनिल सिस्टम में नॉर्मली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। एंड न्यूक्लियोफाइल इजीली कब अटैक करेगा? जब पॉजिटिव चार्ज सेंटर में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो मोर पोलर है देन कीटोन्स, सो दैट इज व्हाई एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इजियर होता है देन कीटोन्स। चले आगे, समझ में आया? तो Yes, sir. Yes, और एक चीज आपको मैं बोल के रखता हूँ, ये जो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग है ये बहुत इंटेंस सिग्नल है, एंड perhaps this is the most intense signal in IR। जैसे मैं बोला आपको कि OH का पीक यू कैन नेवर फॉरगेट और नेवर मिस इन IR, कार्बोनिल स्ट्रेचिंग आल्सो यू कैन नेवर मिस इन IR। इसका रीजन ये है कि इतना इंटेंस सिग्नल होता है, आप कभी इसको मिस नहीं करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, यू कैन फील इट दैट हाउ मच इंटेंस इज द सिग्नल। आप अगर कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग देखोगे, क्या हो रहा है, सॉरी, आप अगर कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग देखोगे यू कैन, आपको पता चलेगा। This is an example of aldehyde and you can see the carbonyl stretching here। आप जितना भी पीक यहाँ पे है सबको देख लो, एंड ये पीक को देखो कितना इंटेंस सिग्नल है, इज नॉट इट? ये सिग्नल अभी कभी आप मिस करोगे? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कार्बोनिल स्ट्रेचिंग इज अ वेरी वेरी इंटेंस सिग्नल जो कि 1600 1700 के आसपास होता है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड। मैं आपको बोल के भी रखा हूं, डबल बॉन्ड पीक्स जो होता है वो 1500 से 2000 के बीच में आता है, वेदर इट इज सी डबल बॉन्ड सी और सी डबल बॉन्ड ओ, सभी पीक्स इसी रेंज में आता है, 1500 से 2000 के बीच में आता है। एनीवे, दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट पीक व्हिच इज ऑब्जर्व इन
कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, तो कार्बोनिल कंपाउंड में आप देखोगे बहुत सारा पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है आप देखो, कार्बोनिल में आपका एल्डिहाइड का बात हम कर सकते हैं, कीटोन का बात कर सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन हैव एसिड्स एंड एसिड डेरिवेटिव्स। आप एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव का बात भी कर सकते हैं। एल्डिहाइड क्या है, ऑलरेडी यू नो, दिस इज एल्डिहाइड, this is ketone, and acids also they have carbonyl group. In addition to that, some other interesting possibilities are there. This is ester, and this is what I can say, amide. You can have acid halides and so on. सभी में carbonyl group होता है. And now if somebody tells you the relative position of carbonyl stretching, I think आप आराम से बोल सकते हो कहां पे आगे कहां पे पीछे होगा। ओके, इज नॉट इट? ऑलरेडी मैं आपको समझा दिया हूं ना, किसको देख के आपको बोलना है। यस, अरे बोल सकते हो कि नहीं? हेलो, आर यू कनेक्टेड? यस सर। यस वी आर कनेक्टेड। अच्छा, ओके। एल्डिहाइड कीटोन में थोड़ा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूं। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, they are actually functional isomers, means they have same molecular formula। इसमें से एक क्वेश्चन सपोज इस तरह से आता है, क्वेश्चन कैसे हो सकता है देखो, आंसर कैसे प्लान करोगे, दोनों ही एक साथ बोलता हूं। द मोलिकुलर फॉर्मूला C3H6O has two functional isomers, suggest how IR can help to distinguish them। क्वेश्चन वेराइटी वे में आपको कोई पूछ सकता है, बट आपको आईआर यूज करना है टू डिस्टिंग्विश। तो कैन यू राइट डाउन द फंक्शनल आइसोमर्स? एक है CH3 CH2 COH, अब देखो एल्डिहाइड, एंड अनदर इज CH3 CO CH3 कीटोन। ये दोनों फंक्शनल, जस्ट लाइक एसिड एंड एस्टर। एसिड एंड एस्टर आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो फंक्शनल आइसोमर्स को डिस्टिंक्शन करने में आपको आईआर बहुत हेल्प करता है। अब देखो, दिस इज एल्डिहाइड, सो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग दोनों में होगा, इसमें थोड़ा लोअर साइड में होगा। अब आई करेक्ट? ये हमने देखा था ना 1745-50 में होता है, ये 1730 1725 में होता है। जस्ट मैं आर्बिट्ररी वैल्यू लिखा हूं, आपको रीड होने की जरूरत नहीं। थोड़ा ऊपर होगा, ये थोड़ा नीचे होगा, बट ये तो इतना डिफरेंस नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस टू डिस्टिंग्विश। कैन यू टेल मी अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस? एल्डिहाइड में आपका एक पिकुलियर है ESCH स्ट्रेचिंग। इज इट प्रेजेंट हियर? कीटोन में है? यस। नहीं सर। तो एल्डिहाइड प्रोटोन जो है, एल्डिहाइड प्रोटोन यहाँ पे नहीं है। तो एल्डिहाइड प्रोटोन का जो स्ट्रेचिंग है, एल्डिहाइड जो CS स्ट्रेच, ये एक पिकुलियर स्ट्रेच है। एंड आप याद रखो इसको, टू वीक सिग्नल्स एट, आपको थोड़ा 3000 से नीचे होगा ये। नॉर्मली सैचुरेटेड CS स्ट्रेचिंग जो आता है वो 2900 2800 से आता है, ये अराउंड
2700 28 to 2700 में 2 वीक सिग्नल्स आएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक एल्डिहाइड का स्ट्रेचिंग है। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड में आपको जो अनसैचुरेटेड सीएच स्ट्रेचिंग जो कि 3000 से ऊपर आप एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि ये sp2 कार्बन है, नॉर्मली वी आर एक्सपेक्टिंग ए पीक अराउंड 3100, बट ये पीक यहाँ पे एब्सेंट होता है। मैं बार बार बोलता हूं, एल्डिहाइड प्रोटॉन का जो पीक होता है वो 2700 से 2800 के बीच में होता है। 2 पीक्स एकदम वीक सिग्नल होता है, एंड दिस इज कैरेक्टरिस्टिक। रिमेंबर, इंपॉर्टेंट लिखा हूं, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्डिहाइड, जो कि यहाँ पे एब्सेंट होगा। तो एल्डिहाइड प्रोटॉन्स जो है वो आपको 2 वीक सिग्नल देता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ this planar nature. Here there is a symmetrical and asymmetrical stretching of C double bond O and CH bond. ये दोनों बॉन्ड सिमेट्रिकल asymmetrical stretching के वजह से ये 2 वीक सिग्नल आता है। एंड रिमेंबर दिस इज ऑब्जर्व्ड अराउंड 2700-2800 रीजन में होता है, एंड देयर इज नो पिक फॉर sp2CH स्ट्रेचिंग और अनसैचुरेटेड CH स्ट्रेचिंग above 3000. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्डिहाइड that makes it different from ketones. कीटोन एंड एल्डिहाइड में यही एक इंपॉर्टेंट फर्क है, आपको मार्क करना है। एंड मैं यहाँ पे स्लाइड में भी ये चीज को हाईलाइट करके एक्सप्लेन किया हूं, यू कैन रीड इट, इफ यू रीड इट यू कैन अंडरस्टैंड। एल्डिहाइड्स have 2 CH signals, एल्डिहाइड्स have 2 CH signals around 2700-2800 रीजन में, 2700 and 2800 सेंटीमीटर इनवर्स, and this is not present in ketone. So this is one of the very interesting aspect of aldehyde and ketones. And if you go through the examples, you can see that. Coming to the other compounds, acids, you can see in acids you can have carbonyl stretching and also the OH. Acid में OH भी है ना, है कि नहीं? अरे एसिड में OH है कि नहीं? यस सर। तो क्या यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपका होगा? यू सी, एसिड में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बोलता हूँ। एल्डिहाइड कीटोन तो बोल दिया, एसिड में क्या इंपॉर्टेंट है आप देखो। ओनली जो फैक्ट आपको डिस्टिंक्शन में हेल्प करेगा मैं वही बोल रहा हूँ। एसिड में दिस OH इज far far more polar, far more polar. नॉर्मली तो OH पोलर है, बट ये कार्बोनिल ग्रुप जो है दिस इज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो दिस OH का ऊपर जो पोलरिटी है ये और भी बढ़ जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर रिलीजिंग होता तो अलग बात था, ये विथड्रॉइंग है, दैट मींस ये ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको वो और भी बढ़ा देता है। Okay, so this is far more polar due to electron withdrawing nature of carbonyl group. Therefore, the OH signal becomes relatively ब्रॉड। तो ऐसे तो OH सिग्नल ब्रॉड है, ये और भी ब्रॉड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। समझ में आ रहा है? यस यस समझ में आ रहा है? तो आप देखोगे ये एसिड में OH का जो सिग्नल है इतना ब्रॉड हो जाता है, ऑलमोस्ट 1000 सेंटीमीटर इनवर्स तक ये कवर कर लेता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। तो इतना ब्रॉड हो जाता है कि आप देखोगे इसमें मिथाइल स्ट्रेचिंग भी आपको नहीं दिखेगा। जो सैचुरेटेड CH स्ट्रेचिंग होता है जस्ट बिलो 3000, वो सब पिक भी यहाँ पे मुश्किल होता है देखने के लिए। बट एक चीज है कि CH का जो स्ट्रेचिंग है वो भी बहुत इंटेंस सिग्नल है, तो थोड़ा बहुत आपको ये जो ब्रॉडनेस के बीच में OH का पिक तो ब्रॉड हो जाएगा बहुत।
तो इसके अंदर थोड़ा बहुत हो सकता है कि नीचे आपको जो सी स्ट्रेचिंग है इस तरह से दिखे, सी स्ट्रेचिंग, बट नॉर्मली ये कवर अप करता है, माना ऑब्स्कर कर देता है बहुत सारा पीक को। एसिड में OH का सिग्नल बहुत इंटेंस होता है बिकॉज ऑफ दिस वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये एक पिकुलियर ऑब्जर्वेशन है, एंड कोई भी एसिड पीक अगर आप देखोगे यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन सी दिस इज ए एसिड स्पेक्ट्रम, हेक्सानोइक एसिड का स्पेक्ट्रम है, एंड यू कैन सी द नेचर ऑफ द OH पीक कितना ब्रॉड है। आप देखो ऑलमोस्ट 2500 to 3500, ऑलमोस्ट 1000 सेंटीमीटर इनवर्स ब्रॉडनेस है, एंड यू कैन सी द CH पीक्स कैसे दिख रहा है। ये जो थोड़ा बहुत नीचे दिख रहा है ये CH पीक्स एक्चुअली है, ऑलमोस्ट कवर अप हो गया है, CH पीक्स ऑब्स्कर हो गया है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड ग्रुप। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। एंड कार्बोनिल का सी स्ट्रेचिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा लोअर साइड में चला गया है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस कॉन्जुगेशन की वजह से थोड़ा लोअर साइड में गया है, बट कार्बोनिल स्ट्रेचिंग तो ठीक है। ये पिकुलियर जो थिंग है वो है ब्रॉडनेस ऑफ द OH। एसिड में ये जो सबसे मार्क करने वाला चीज है वो है ब्रॉडनेस ऑफ द OH। Okay, so I think these are the characteristic facts, and every time there is a limitation of time. Because of that, I am not going to the more details of the IR analysis, but whatever I have told, questions उसी में से होगा, and please try to go through those 25-30 questions. आप एक बार पढ़ लो उसको, आई थिंक एक बार पढ़ भी लोगे तो हो जाएगा। देयर इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट, इतना सारा क्वेश्चन सर दे दिए, आपको ओनली देखना है, आंसर भी उसके साथ है। देयर इज ए बुक नोन एज एलिमेंटरी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय YR शर्मा, उसी बुक से मैं आपको स्कैन करके दिया हूं। मुझे लगा कि आप थोड़ा पढ़ लोगे तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपका माइंड सेट हो जाएगा। एंड IR में आपको लग रहा होगा कि इतने सारा पिक्स है, कैसे उसको यूज करें फॉर कैरेक्टराइजेशन पर्पस, बट जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके लिए आप बिलीव नहीं करोगे, देख के देयर आर एक्सपर्ट्स आई हैव सीन। आई एम नॉट अ वेरी एक्सपर्ट इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बिकॉज इन प्रैक्टिस आई एम नॉट एट ऑल, आई टीच ऑर्गेनिक इन हायर क्लासेस में, MSc में एक्चुअली I used to teach that group theory and inorganic spectroscopy. I am not very much acquainted with organic spectroscopy at the higher level, but I have seen people just by looking at the spectrum they can give you bits and bits of compounds, बहुत सारा information दे सकते हैं, ठीक है। But for a beginner you can only focus on those 2-3 things what I have told you here. आप इतना ही अगर याद रखोगे तो आई थिंक एट द प्रिलिमिनरी लेवल कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ पिक्स आपको दिया जाएगा, डेफिनेटली एटलीस्ट यू विल बी एबल टू टेल व्हिच क्लास ऑफ कंपाउंड इट इज। आप तो कम से कम इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो आप आइडेंटिफाई कर ही सकते हो कि वेदर इट इज अल्कीन और अल्काइन और अल्कोहल और एल्डिहाइड और कीटोन और एसिड, इज नॉट इट? आर यू have you developed confidence, that much of confidence in mind? Yes, sir. IR स्पेक्ट्रम में बहुत सारा चीज है, वो सैंपल प्रिपरेशन, इंस्ट्रूमेंटल हैंडलिंग, अनेक बहुत सारा चीज है जो कि हम लोग को डिस्कशन करना चाहिए, बट यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट यही है कि थोड़ा बहुत हमको जो स्पेक्ट्रम है उसको कैसे देख के विजुअलाइज करके क्या इंफॉर्मेशन हम ड्रॉ कर सकते हैं उसमें से। ओके, तो and you can check your knowledge also by taking any class of compound and predicting something there. What are the basic things? IR में बहुत सारा पिक होता है, बेंडिंग रीजन में तो बहुत इंफॉर्मेशन छुपा हुआ होता है, इट इज नॉट पॉसिबल नाउ। एटलीस्ट 1500 से ऊपर जो पिक्स है उसको देख के क्या इंफॉर्मेशन आप ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। सो आई हैव ट्राइड टू डिस्कस द इंफ्रारेड in a brief, and whatever classes I have discussed, alkane, alkene, alkyne, alcohol,
एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड जितना भी है, अमीन्स जितना भी है, मैं जितना डिस्कशन किया हूँ थोड़ा एक बार उसको देख लो. And answering questions is very very easy from these two topics, that is UV and IR. Whatever I have discussed in the class, please go through, and if you have any doubt, you can ask me later on. So that finishes your infrared spectroscopy. आपका infrared spectroscopy खत्म हो गया. अभी क्लास है आपका ना immediately? Yes, sir. We have a maths class. Okay, so I was thinking of starting the NMR spectroscopy so that next week I can complete up your last chapter, that is electrochemistry, but unfortunately I am not getting time. Actually सुबह जब मैं उठा, मैं सोचा कि I will be taking your class, but not at all feeling good at that time. मुझे लगा कि मैं आपका क्लास ले सकता हूँ, but when I wake up in the morning, I was not in a position to speak clearly. मुझे लगा कि मैं क्लास ले लूंगा, but then I felt that it may not be able to possible for me to take the class. I'm very sorry. I am promised to take the class, but unfortunately I was not able to take it. मैं देखता हूँ आपका फ्राइडे सैटरडे में मैं आपका रूटीन टाइम टेबल देख के खुद देखूंगा, and if find some time I may call you for another 1 hour, because my target was that to complete NMR by this week. Okay, तो इसी वीक में मुझे NMR खत्म करना था. NMR में बहुत कम चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कि मैं पूरा NMR में पढ़ा नहीं पाऊंगा, एग्जाम में भी आपका नहीं आएगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना ही आएगा, तो डोंट वरी. तो NMR में कुछ बेसिक आइडिया मैं देना चाहता हूँ, एंड इफ पॉसिबल आई मे कॉल यू फॉर सम टाइम इन दिस वीक. जो नेक्स्ट 2-3 days है, you don't have any class, chemistry class, but I will be informing you in the group, and I may take 1 or 1.5 hour class for NMR. Okay, thank you. Thank you, sir.